کاڑا تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں قتل کی لرزہ خیز واردات، جائیداد کے تنازع پر بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل، پولیس نے ملزم سجاد کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپوں کا سلسلہ جاری۔ کشمور کے نواحی گاؤں دین محمد پوش میں افسوسناک واقعہ، معمولی جھگڑے پر غلام حسین نامی سفاک شخص نے فائرنگ کرکے اپنی بیوی میرا بی بی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پولیس کی جانب سے ملزم کو تاحال گرفتار نہ کیا جا سکا۔ فتح جنگ میں اچک پولیس کی کامیاب کارروائی، فتح خان نامی اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا گیا، ملزمان دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت دیگر سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھا، پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ڈہرکی کے نواحی گاؤں میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، جنت نامی خاتون کو اہل خانہ کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں، نوبہتہ جوڑے کی ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوچکی سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل۔ اور کرونا کے وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 29 کیسز رپورٹ، مثبت کرونا کیسز کی شرح 0.38% ہو گئی، مہلک وائرس میں مبتلا 42 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز، اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، کاڑا تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں قتل کی لرزہ خیز واردات، جائیداد کے تنازع پر بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل، پولیس نے ملزم سجاد کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، ڈی پی او کا کہنا ہے کہ دیگر ملزمان بھی جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ کشمور کے نواحی گاؤں دین محمد پوش میں افسوسناک واقعہ، معمولی جھگڑے پر غلام حسین نامی سفاک شخص نے فائرنگ کرکے اپنی بیوی میرا بی بی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پولیس کی جانب سے ملزم کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ فتح جنگ میں اٹک پولیس کی کامیاب کارروائی، فتح خان نامی اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا گیا، ملزم دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت دیگر سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھا، پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور کے نواحی علاقے میں چائے بنانے کے دوران آگ بھڑک اٹھی، آتش زدگی کے باعث ایک شخص جھلس گیا، اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا، متاثرہ شخص کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈہرکی کے نواحی گاؤں میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، جنت نامی خاتون کو اہل خانہ کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں، متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی ہے مگر گھر والوں کی جانب سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، نوبہتہ جوڑے نے ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوچکی سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ڈی پی او جنگ محمد راشد ہدایت کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، شہریوں کو درپیش مسائل سنے اور حل کے احکامات جاری کیے، مزید جانتے ہیں جاوید اقبال گماس کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او جنگ صاحب جو ہیں نا جی، یہ لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ریڑھی والوں اور جو
अपना मजदूर टाइप लोग हैं। मैं एक्स नाज़िम हूँ बतौर अवामी नुमाइंदा। ये मैंने अवाम से सुना है सारे लोगों को ऐसा ईमानदार और अच्छा DPO होना चाहिए। और बल्कि गवर्नमेंट पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर जिले में जैसे जंग में DPO लगाए ऐसे DPO लगाएं जंग में, ताकि हालात और लोकल लेवल छोटे लेवल पे जो है ना वो लोगों को सस्ता इंसाफ मिले। और अब SHO साहब भी जिसके पास जाते हैं वो उन्होंने हदायत कर दी है कि जो भी SHO है ना थाने में वो हर शरीफ आदमी की रिस्पेक्ट करे, छोटे लेवल पे लोगों को सस्ता इंसाफ दे। और अगर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने गरीब आवाम के साथ अपना मिलजुल रखा तो पुलिस और आवाम के दरमियान। सहाफ़ी जुरेस चौधरी पर हमले के खिलाफ कश्मीर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। रशीद मेमन और सलीम खान समेत दीगर का कहना था कि सहाफ़ी पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। सहाफ़ियों की जानिब से मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किए जाने का मुतालबा भी किया गया है। SDPO गाजी मोहम्मद यासीन का तरबेला डैम प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। तरबेला डैम पर सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। DPO हरीपुर इमरान शाहिद की हिदायत पर SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीन जंगजुआ हमरा SHO थाना गाजी इंस्पेक्टर मुनीर खान का तुरबेला डैम TV प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा। इस मौके पर SDPO सर्कल गाजी का तुरबेला डैम पर फारेंस की सिक्योरिटी के हवाले से इंजीनियर वर्करों से मुलाकात और सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत। SDPO सर्कल गाजी मोहम्मद यासीन जंगजुआ ने फारेंस की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस जवानों को अलर्ट होकर मजीद बेहतर ड्यूटी करने की हिदायत की और SHO थाना गाजी इंस्पेक्टर मुनीर खान को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट एरिया में काम करने वाले फारेंस की सिक्योरिटी को यकीनी मौसर बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर गाजी। सजावल DC ऑफिस में अहम इजलास का इनेकाद हुआ जिसकी सदारत सैयद अयास अली शाह और रेहाना लगारी ने की। इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि जिले में स्कूल्स की मुरम्मत, फर्नीचर और सोलर सिस्टम की फराहमी समेत दीगर तरक्याती मनसूबों पर काम सुस्त रवी का शिकार है, जिस पर कमेटीज के चेयरमैन और चेयरपर्सन ने मुतल्लिका महकमों के इंजीनियर्स को सख्ती से हिदायत की है कि जिला में जारी मनसूबों को मेयार के साथ साथ मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। ओखाड़ा में मसीही इबादत गाहों के अतराफ पुलिस सिक्योरिटी हाई अलर्ट। DPO फुरकान बिलाल का कहना है कि गैर मुतल्लिका अफराद को मसीही इबादत गाहों में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी के इंतजामात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर शख्स को मुकम्मल चेकिंग के बाद मसीही इबादत गाहों में जाने दिया जाएगा। पुलिस एहलकारान और अफसरान अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दें। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का फ़र्ज है। मंडी उस्मानवाला में DS रेलवे मोहम्मद हनीफ का दौरा। रेलवे मुलाजमीन की पुरानी रिहाइश गाहों को मुनहदम करने का हुक्म। रेलवे के लिए नया फर्नीचर बनाने का हुक्म भी दिया गया। उन्होंने कहा कि मंडी उस्मानवाला रेलवे रोड के अतराफ ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। फरीद एक्सप्रेस को जल्द बहाल किया जाएगा। तहसील गुम्बद स्टेशन वीरानी का शिकार। रेलवे इंतजामिया की जानिब से ट्रेनों की बंदिश के बाद रेलवे स्टेशन की रौनकें वीरानी में तब्दील हो गई हैं। एशिया की बड़ी हस्पताल गम्बद में होने के बावजूद ही गम्बद रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ की चेयर देखें, हम यही चाहते हैं यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ की चेयर देखें, यहाँ पे बैठने को लोग बहुत। गम्बद रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। वफाकी सरकार और रेलवे इंतजामिया की गफलत की वजह से रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ट्रेनों की मुकम्मल बंदिश की वजह से इलाका की आवाम रेलवे के सस्ते सफर से महरूम हो गए हैं। यही चाहते हैं यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ की चेयर देखें,
यहाँ पे बैठने को लोग बहुत परेशान है। हम कहीं भी चले जाएं, आउट ऑफ सिटी चले जाएं, पंजाब चले जाएं, KPK चले जाएं, पेशावर चले जाएं, तो यहाँ से हमें सहूलत फराहम होती थी। अभी हमें सुपर हाईवे पे जाना पड़ता है, उसकी वजह से हमें दुगना किराया भरना पड़ता है। इंतजार करते हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं उन पे नजरसानी की जाए और यहाँ शहरियों की जानिब से रेलवे इंतजामिया और वजीर आजम पाकिस्तान समेत वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल करने का मुतालबा किया है। बारिशों के बाद मुकम्मल तौर पर ट्रेनों की बंदिश से कराची, कोयटा और पेशावर जाने के लिए इलाका के मकीन प्राइवेट कोचेस में महंगा सफर करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ फरहान बोलो। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चूनिया में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। चूनिया में साग, पालक, मेथी, मुंगरे, कद्दू, बैंगन, खीरा, शलजम, गाजर, मूली तो सस्ते दामों दस्तयाब हैं, लेकिन 180 रुपए किलो टमाटर खरीदते हुए गरीब शहरियों के चेहरे लाल पड़ रहे हैं। 200 रुपए किलो प्याज आंसुओं पर काबू पाते हुए खरीदने पर मजबूर हैं। लहसुन की तीसरी सेंचुरी और अदरक की 400 रुपए फी किलो कीमत के साथ रही सही कसर आलू 100 रुपए फी किलो पर डटकर पूरी कर रहा है। कम कीमत और महंगी सब्जियों की वजूहात, दुकानदारों से शहरियों की मुश्किलात और हुकूमत से मुतालबा, आइए खरीदारों से जानते हैं। आजकल सब्जी मुकामी शुरू हो गया इसलिए सस्ती है। तो सबसे पहली वजह सर प्याज की ये है कि प्याज सिंध में सैलाब की वजह से महंगा हो चुका है। टमाटर और प्याज मुल्तान से आता था उधर से, वो आजकल कम आ रहा है, बड़ी मंडियों में ही कम है, इसकी वजह से टमाटर मिर्चें महंगी हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो सस्ती हैं और कुछ बहुत ज्यादा महंगी है। महंगी सब्जी में प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह वो इतने महंगे हैं कि गरीब आवाम आसानी से खरीद नहीं सकता। हुकूमत पंजाब से दरखास्त करते हैं कि ये जो लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह महंगी अशिया हैं, इनको सस्ता किया जाए ताकि गरीब आवाम आसानी से खरीद सके। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से कुव्वत खरीद से बाहर सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आतिफ राना के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, चूनिया। महंगाई के इस दौर में सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर, गरीब शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर हसनैन तारिक से, जो कि इस वक्त लाहौर के एक बाजार में शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी हसनैन, बताइएगा सब्जियों की कीमतों के हवाले से शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर गरीशाहो बाजार में मौजूद हूँ। अगर महंगाई की बात की जाए तो सब्जी की कीमतों में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है, जिस पर हमारी जिली इंतजामिया कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है, जिसकी वजह से शहरियों के लिए सब्जी खरीदना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। इन हालात में शहरियों का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, ये हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल इजाफा हो चुका है जी महंगाई में। जो 20 की चीज़ है वो 40 की हो गया है, जो 40 की है वो 60 की हो गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ मोहब्बत करें कि हम इसको तरीके से खा तो सकें, कमा सकें और खा सकें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जिस तरह के शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इन सब्जी की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि हमारा गुजर बसर आसान हो सके। और मुसलसल इस आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सर्दियों की आमद के साथ ही लाहौर एक बार फिर सकाफती और रिवायती रंगों में रंगा गया। 3 रोज़ा फूड टर्म म्यूजिक फेस्टिवल को शहरियों ने खूब इंजॉय किया। लाहौर में वाक़ निजी सोसाइटी में पाकिस्तान के सबसे बड़े फूड एंड म्यूजिकल इवेंट सिविल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद सिविल फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज हुई। फूड फेस्टिवल में शहरी मुख्तलिफ इक़साम के खाबों से लुत्फ अंदोज होते रहे। शहरियों ने पाकिस्तानी समेत इटालियन, चाइनीज़ और दीगर खानों को खूब इंजॉय किया। फेस्टिवल में म्यूज़िक का तड़का लगा तो शहरी झूम उठे। फेस्टिवल के इनेकाद को हाज़रीन ने खुश आइंद करार दिया है। एक बार फिर आपको बताएं, सर्दियों की आमद के साथ ही लाहौर एक बार फिर सकाफती और रिवायती रंगों में रंगा गया। 3 रोज़ा फूड म्यूज़िक फेस्टिवल को शहरियों ने खूब इंजॉय किया।
लाहौर में वाक़ निजी सोसाइटी में पाकिस्तान के सबसे बड़े फूड एंड म्यूज़िकल इवेंट सिविल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद सिविल फेस्टिवल में लुत्फ़ अंदोज़ हुई। फूड फेस्टिवल में शहरी मुख्तलिफ इक़साम के खाबों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। शहरियों ने पाकिस्तानी समेत इटालियन, चाइनीज़ और दीगर खानों को खूब इंजॉय किया। फेस्टिवल में म्यूज़िक का तड़का लगा तो शहरी झूम उठे। फेस्टिवल के इनेकाद को हाज़रीन ने खुश आइंद करार दिया। ओकाड़ा में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोल्जर मूवमेंट दीपालपुर की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन सोल्जर मूवमेंट हाजी ताज मोहम्मद खान ने की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन की जानिब से पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। ओकाड़ा में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोल्जर मूवमेंट दीपालपुर की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन सोल्जर मूवमेंट हाजी ताज मोहम्मद खान ने की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन की जानिब से पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कराची में सिविल सोसाइटी मलीर की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। सिविल सोसाइटी मलीर की जानिब से पाक फौज की हिमायत में मलीर सिटी से मलीर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नोमान मुराद, सरदार अख्तर आरफानी, फरीद बलोच, आगा तारक पठान, डॉक्टर अजमत लूंद, रुस्तम हिंगोरो, अली मोहम्मद गबोर, राना मोहम्मद परवेज, खुदाबख्श पठान व दीगर ने की। रैली में खवातीन, बच्चों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक शहरियों ने प्ले कार्ड लेकर पाक फौज के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए सियासी समाजी रहनुमाओं ने कहा कि पाक फौज ने मुल्क और कौम के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पाक फौज मुल्क की मुहाफिज है, जिस पर हमें फख्र है। इन्होंने कहा कि पाक फौज के खिलाफ झूठी प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क दुश्मन एजेंट हैं, जो पाक फौज को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज से मुल्क का हर शहरी बेइंतहा मोहब्बत और अंधा एतमाद करता है। हम आजाद वतन में पाक फौज की कुर्बानियों के बदौलत सांस ले रहे हैं। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पाक फौज और ISI के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं हो सकते। ऐसे अनासर मुल्क दुश्मन एजेंट है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर। चारसदा की तहसील शबकदर के मकामी कॉलेज में 11वीं जमात के तलबा के लिए वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, असातिज़ा किराम और वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं इकरामुल्लाह सदीकी की इस रिपोर्ट में। ICL कॉलेज शबकदर में फर्स्ट ईयर में नई आने वाले तमाम तलबा के लिए एक शानदार वेलकम पार्टी अरेंज की गई, जिसमें तमाम तलबा और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। इस पार्टी को तलबा ने बहुत एंजॉय किया। तलबा ने अपनी खूबसूरत तकारीर, नात और मिल नगमों से इस महफिल को खूबसूरत बना दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने अपनी तकरीर और तलबा की हौसला बढ़ाई। बाद में कामयाब तलबा, खासकर इस बार कॉलेज फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात नताइज पर पूरी तहसील शबकदर में बेहतरीन पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात दी गई। कॉलेज की तमाम असातिज़ा को भी इनकी बेहतरीन कारकर्दगी और दिल लगाकर पढ़ाने पर उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस की अवार्ड्स नवाजा गया। आखिर में कॉलेज की तरफ से तमाम तलबा के लिए खाने का प्रोग्राम भी किया गया था। कैमरामैन इफ्तिहार फहर के साथ इकरामुल्लाह सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़। भुआना में किसान इत्तेहाद की जानिब से अटां तरखावाला में पावर शो किया गया, जिसकी क़यादत ज़िले सदर किसान इत्तेहाद चौधरी सहराब ने की। इस मौके पर किसान इत्तेहाद कायदीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। हम आज एक जंक्शन में मैसेज देना चाह रहे थे इस गवर्नमेंट को, जो वादे तो करती है लेकिन वफा नहीं करती। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसान पैकेज अरबों में किया, लेकिन उसका हमें फायदा क्या हुआ? जो DAP पहले ही लेस रेट में 13,000 वाली भी 11,000 में मार्केट में अवेलेबल थी, तो वो अनाउंस जो 2500 उन्होंने कम किया, वो बेसिकली जो इंसेंटिव था वो मैन्युफैक्चरर को दिया गया है, किसान को तो नहीं दिया गया। किसान का तो पहले ही वो 11,000 में मिल रही थी। दूसरा, वापडा के
जो हैं एहलकार जो ये कर रहे हैं, आजकल हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि उनके मीटर ये डिफेक्टिव होते हैं और वो रिप्लेसमेंट नहीं है। वो हम अपने मीटर बर वक्त किसानों को देते नहीं है और फिर उसके हिसाब से डीबीएल डालते रहते हैं। और फिर उसके साथ साथ हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 1947 से लेके आज तक किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी नहीं किया गया। हमारी ये गवर्नमेंट से डिमांड है, आज हम यहाँ पे कर रहे हैं और चेयरमैन साहब भी करेंगे, कि इस मुल्क में जब तक आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर ये जो पाकिस्तान ये ट्रैक पे नहीं आएगा। आज हम लालिया में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चनियोट में आए हैं। यहाँ पे किसान इत्तेहाद का जलसा था, आज हमने बॉडी भी अनाउंस की है और इंशाल्लाह अब किसान इत्तेहाद यहाँ पे अपनी भरपूर मेहनत करेगा और किसानों को उनका हक दिलवा के रहेंगे। चिनियोट में अगर किसी किसान के साथ कोई भी ज्यादती की जाती है किसी भी महकमे की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, तो उसका भरपूर दिफा किया जाए। ओकाड़ा में दोनों हाथों से महरूम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कारनामा। मोहम्मद ज़िशान ने अपने मसनूई हाथों और दोस्त की मदद से कंप्यूटराइज्ड गाड़ी तैयार कर दी। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा में दोनों हाथों से महरूम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दुनिया में एक तारीख रकम कर दी। अपने मसनूई हाथों से अपने एक दोस्त मोहम्मद इमरान की मदद से एक कंप्यूटराइज्ड गाड़ी तैयार की जिसको आवाज से कंट्रोल किया जाता है। कार को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से चलाया जाता है। इसको वॉइस कमांड देते हुए आगे पीछे दाएं बाएं किया जा सकता है। हाल ही में केमिस्ट्रिस यूनिवर्सिटी साहिवाल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले इंजीनियर मोहम्मद ज़िशान का शुमार इन नौजवानों में होता है जिन्होंने मजदूरी को बहाना नहीं बनाया। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है और 2007 में मेरे साथ एक वाक़या पेश हुआ। मुझे 11 बार वोल्टेज का करंट लगा जिसकी वजह से मेरे बहुत हैंड जो हैं वो डैमेज हो गए। बट डॉक्टर्स ने दोनों हाथों को एम्पूटेट कर दिया। लाइफ जर्नी स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल था एंड स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल था। लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना बड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि बहुत हैंड्स की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं करना, मजबूरी थी, कुछ कर पा नहीं रहे थे। फिर मैं एक एनजीओ के थ्रू अमेरिका चला गया और वहाँ पे मुझे आर्टिफिशियल हैंड प्रोवाइड किए गए जिसकी वजह से मैं अब अपना लिखना और खाना पीना स्टार्ट किया। मैं अपने बेटे ਨੂੰ बड़ी मुश्किल हालात ਦੇ ਵਿੱਚ अपने बेटे ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ बड़ी अपील है हुक्मरानां ਨੂੰ, वज़ीर आला पंजाब ਨੂੰ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ਨੂੰ कि जहाँ तक ये इसने तालीम हासिल की है तो इनू एक आला नौकरी दी जाए ताकि आने वाले वक्त वास्ते ਇਹਦਾ बच्चे ਦਾ मुस्तकबिल बन सके। शुक्रिया। ये नौजवान ऐसी सलाहियत रखने के साथ साथ गाड़ी, कंप्यूटर, लिखने के साथ क्रिकेट, फुटबॉल भी खेलता है। इंजीनियर मोहम्मद ज़िशान ने अपने जैसे नौजवानों को मेहनत और लगन का मैसेज दिया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इंजीनियर मोहम्मद ज़िशान जैसे बहादुर और मेहनत की लगन रखने वाले नौजवान कहा है कि खुदी को गर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कैमरा टीम के अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सवात के इलाके मदीन में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं मोहतर अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील मदियन के ज़ेरे एहतमाम मदियन में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान तकसीम किया गया। इस इमदादी सामान में गर्म कपड़े और बिस्तर शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहसील मदियन के सदर गुलजादा ने अपनी निगरानी में सामान तकसीम किया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील मदियन के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। सामान तकसीम करने के बाद सदर गुलजादा ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के मशीर इंजीनियर अमू मुकाम की इस हलके से बेपनाह मोहब्बत है। जब भी इस हलके के लोगों को परेशानी आई है तो इंजीनियर अमीर मुकाम हर कदम पर अवाम के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी पर नजर डाली जाए तो इलाका में मेगा प्रोजेक्ट से अवाम की खिदमत की गई, जिसमें मदियन ग्रिड स्टेशन की तामीर, फिर सैलाब के बाद इसकी दोबारा तामीर, मदियन से कालाम तक रोड की तामीर, मदियन बहरैन में नादरा दफातर की तामीर जैसे मंसूबे उन्होंने किए।
अब जब अवाम पर एक बार फिर मसाइल का सामना है तो उन्होंने अपने बेटे अदनान अमीर मुकाम के हाथ मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान भी मुहैया किया और आइंदा भी करेंगे। इस मौका पर दीगर ओहदेदारान ने भी मीडिया से खिताब किया और मुतासिरीन की मदद करने पर इंजीनियर अमीर मुकाम और उनके बेटे अदनान अमीर मुकाम का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद मतर अली, कोहिनूर न्यूज़। नारग मंडी में 2 रोज़ा आई कैंप का इनेकाद किया गया। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों की आंखों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारग मंडी में जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन के तावन से दारी अरकम स्कूल नज़ गोल चौक में चौधरी जाहिद उमरान कोलोटाना और चौधरी रियासत अली कल्लू की ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 150 से ज़ायद मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया, चेकअप और अद्वियात मुफ्त फराम की गई। अवाम ने आई कैंप के इनेकाद को सराहा। आइए बात करते हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जबकि सूबाई रहनुमा चौधरी जाहिद उमरान कोलोटाना चौधरी रियासत अली कल्लू से। जी, आप इस सिलसिले में। मेरा नाम सैयद मोहम्मद काजिम है और मैं एक तंजीम जिसका नाम हेल्प इन नीड है उसके और एक इंटरनेशनल तंजीम है जिनका नाम IHS नीदरलैंड है, उनके तावन से हम नारंग मंडी के अंदर एक फ्री कैटरेक्ट सर्जरी का जो है कैंप कर रहे हैं, जिसमें हमने 150 के करीब लोगों की फ्री आंखों की ये सर्जरी करनी है सफेद मोतिये। तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता एक दिन से ये काम जारी है और कल तक भी ये जारी रहेगा। और हम समझते हैं कि हमारे साथ जो टीम है कंसल्टेंट की, डॉक्टर्स की, ये एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबली भी इन्होंने बहुत सारे ममालिक के अंदर काम किया है और यहाँ के लोगों की तरफ से हमें मुख्तलिफ दरख्वास्तें मिली थी। जो लोग अगरचे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पंजाब ने फ्री जो सेफ कार्ड भी दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में फिर भी नहीं था। हमने ये सूरत यहाँ जाहिद इमरान कोरोटाना साहब जो हैं उनके स्कूल के अंदर इसका क़याम किया कैंप का, और इंशाल्लाह आने वाले साल में भी हम इस तरह की चीज़ें यहाँ करते रहेंगे। फ्लाई आज का ये फ्री आई कैंप जो है वो हेल्प एंड नीड के तावन से इदारे के स्कूल में चल रहा है, जिसमें तमाम जो मरीज हैं, कल भी हमने तकरीबन 150 के करीब मरीज चेक किए हैं और उसमें से तकरीबन 40 के करीब ऑपरेशन के अंदर रिकमेंड हुए हैं, जिनका 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा था, जो हम फ्री कर रहे हैं। आज बहावलपुर में तिबी सहूलियात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइच के अहकामात। हस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वड़ाइच ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियत की फराहमी और मरीजों को अस्पताल और मराकज सेहत से अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और दफ्तर के कमेटी रूम में जिला भर के अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, मराकज से और दीगर हेल्थ सेंटर से दी जाने वाली तिबी सहूलियत का जायजा ले रहे थे। इस मौके पर जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, MSTHQs, मराकज सेहत मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में मौजूद तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और मराकज सेहत में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियत का अलग-अलग जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर खिदमत सर अंजाम दें, बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत काम किया जाए। उन्होंने कहा अस्पताल व मराकज सेहत में आने वाले मरीजों को तिब्बी सहूलत की फराहमी सुस्ती और गरफत न बरती जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सफाई तरह के कामों में मजीद बेहतरी लाई जाए और अस्पताल और मराकज सेहत में खुदा सदाबहार पौधे लगाए जाए, लान बनाया जाए ताकि खुशगवार तब्दीली महसूस हो। उन्होंने कहा कि जिला भर में अदम दस्तयाब सहूलियत की फराहमी को जिला भर में अदम दस्तयाब सहूलियात की फराहमी को फराहम करने के लिए इकदाम किए जाए। उन्होंने कहा कि जिला भर में अदम दस्तयाब सहूलियात की फराहमी को फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलियो से बचाओ मुहिम, डेंगू के खात्मे की मुहिम कामयाब से हमकिनार किया, जिसमें डॉक्टर टेंडूवाला यार्ड में अलखदमत फाउंडेशन का अहसन इकदाम। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। मजीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा ताद अब्बासिया इंटरनेशनल के मरकजी राब्ता सेक्रेटरी अब्दुल हमीद अब्बासी की दरख्वास्त पर अलखिदमत अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद यूनुस कायम खानी के ताउन से अलखिदमत फाउंडेशन की मिनी हेल्थ मोबाइल वैन नेशनल प्रेस क्लब टंडोलार पहुँच गई, जहाँ पर मेहनत कश अफराद का मुआयना करने के साथ साथ इन्हें अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौके पर अलखिदमत अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद यूनुस कायम खानी ने कहा कि मिनी अस्पताल मोबाइल वैन टंडोलार की आवाम के लिए बड़ी नेमत है, जिसमें तमाम तर सहूलियात एक ही जगह मुहैया की गई हैं,
जिसमें मरीजों का चेकअप, लेबॉर्ट्री टेस्ट, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर रूम समेत दीगर सहूलियात इस गाड़ी में मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी आफत हो, परेशानी हो, किसी किस्म के मामला भी हो, आवाम से मुतालिक सबसे पहले अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो पहुंचती है लोगों की मदद के लिए। हालिया बारिश के अंदर भी जो है अल खिदमत फाउंडेशन ने जो काम किया वो बिल्कुल आया है, लोग जानते हैं, देखते हैं। शहरों में भी काम किया, देहात में भी काम किया, लोगों को अनाज भी दिया, लोगों को राशन भी दिया, लोगों के इलाज मालजे की सहूलत भी दी। मलेरिया के हमारे बहुत ज़्यादा केसेस जो इसकी वजह से पानी की जो है ना ज़्यादा खराब पानी के मॉस्किटो ज़्यादा हो, तो मलेरिया में बहुत पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें हमने फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, मल्टीपल देखे। अच्छा, हमने गांव में डेंगू पॉजिटिव भी देखे, जिसमें हमने सीपी में देखा कि प्लेटलेट्स भी उनके डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमने डेंगू पॉजिटिव केसेस भी बहुत आए, मलेरिया के बहुत आए। ज़्यादा इलाकों में हम लोग ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे मुतासिरीन को मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। इनका मस्जिद कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन रोज़े अव्वल से लेकर आज तक इंसानी खिदमत के मिशन पर गामजन है। जदीद मोबाइल मनी अस्पताल के जरिए हज़ारों अफराद को इलाज। बहावलपुर में सर्दी में इजाफे के साथ ही शहरियों ने मछली फरोशों की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सर्दी की आमद के साथ ही भावलपुर में मछली की दुकानें भी सज गईं। भावलपुर के शहरों का कहना था कि मछली सर्दियों की बहुत अच्छी खुराक है। सर्दियों की सुगात के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। सर्दियों की शिद्दत में बहुत ज़्यादा जो मच्छी खाई जाती है वो है डमरा। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप डमरा खाएं। बच्चों ने मुझे भेजा है जाएँ मच्छी लेकर आएँ, तो यहाँ पर शॉप पर आया हूँ। सर्दी की वजह से मच्छी का भी बहुत ज़्यादा रश है और मच्छी जो है डमरा बहुत अच्छी है खाने में भी और सर्दी के हिसाब से भी। हमारी 3 किस्म की फ़िश है, खुश्क मिसाला है, बेसन वाली है और ब्लैक पेपर है। सबसे ज़्यादा जो हमारी चलती है वो ग्रिल फिश चलती है। उसके बाद हमारे पास जो है काली मिर्च और खुश्क मसाला सबसे ज़्यादा चलती है। उसमें ये है जो हम जो फ़िश तैयार करते हैं तकरीबन 15 से 16 मिसाले यहाँ पे लगते हैं और ये नहीं है तो बाज़ार से नहीं लेते, हम खुद ही तैयार करते हैं मिसाले। माशाल्लाह में 3 से 4 साल हो गए हैं यहाँ पे खड़े हुए। बहुत अच्छा फ़िश रिस्पॉन्स जा रहा है और हमारे पास बहुत अच्छी फ़िश है। बहावलपुर फरीद गेट में। कैमरामैन खुरम साद के साथ। तिबी माहिरीन का कहना है कि मौसम सरमा में गुड़ का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं टांग से आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। चाय, मशरूबात, चावल और हलवा पकाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब तक हम देसी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। गुड़ की अफदियत से इनकार नहीं। एक अच्छा गुड़ कैसे बनाया जाता है और कितने मराहिल से गुजरकर अच्छा गुड़ बनता है। मशीन भी गन्ना देना है, उनका जूस कढ़ेना है। ओरिजिनल मतलब गन्ने का जूस काढ़ के ही कढ़ा दे जूस इकट्ठा थींदा स्टोर थींदा उहदे वाला दूजे कढ़ा दे उन्होंने भाव मिलती है। उहदी सफाई करेंदे हैं भिंडी भिंडी पा के। उसके बाद त्रीजे कढ़ा शिफ्ट करके उहदे भी गुड़ तैयार करेंदे हैं। जिसले गुड़ तैयार थींदा है पातरी बहर कढ़ेंदे हैं, उहदी बहर काढ़ के ते असा सेल करेंदे हैं। कोई माल मंडी भेज दीता, कोई रोड दे इत्थें सेल थी वेंदा है। सर जी ये बहुत बेहतर है क्योंकि चीनी दे विच तां किस्म किस्म दे मिलावट आइन। ये तो साफ सुथरा गुड़ है। मिसाल है अगर आदमी कई किस्म का इस्तेमाल करें हर इन बेहतर इंसान की सेहत वास्ते। और ये तो सारी एक देसी खुराक है, जिमें कि देसी खुराक होती है तो एक देसी खुराक है। मिसाल सामने गन्ने की रोह निकलती पई है, उनके बाद सामने बनता पे कोई नहीं मिलावट कोई नहीं, कोई इन जरा ना 2 नंबरी कोई नहीं। अलहमदुलिल्लाह जरा ना बेहतरीन काम है कूड़ा वाला जड़ा है। सर्दियों में मर्दान में WSSC MOR यूनिसेफ के ताउन से साफ पानी को महफूज बनाने और सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर करने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए मोहम्मद खान का कहना था कि साफ़ पानी के इस्तेमाल से हम सेहत के बजट को कम कर सकते हैं। उनका कहना था कि साफ़ पानी के इस्तेमाल में एतदाल से काम लेना चाहिए और माहौल की सफाई और पानी के तहफ़्फ़ुज़ में मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कराची में बिजनेस क्लब फोरम और इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और निसार खोड़ो ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कोहिनूर न्यूज़ के एंकर पर्सन सैयद सजाद अली शाह को अवार्ड से नवाजा गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اینکر پرسن سید زید اختر پاکستان بزنس کلب فارم اور امداد عظیم آرگنائزیشن کی جانب سے رنگا رنگ ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا. ایوارڈ شو نیشن لیڈر اور ایوارڈ اور کیک کٹنگ کی گئی. شو کا مقصد تمام اعزاز یافتہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران ٹسوری اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو تھے. ملک کے مایہ ناز شخصیات نے تقریب میں شرکت کی. کامران ٹسوری کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جو کام ریاست کے کرنے کے ہیں وہ ملک کے نوجوان کر رہے ہیں. میں نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم سب کو مل کر پاکستان کا سوچنا ہوگا. تقریب میں سینئر اینکر پرسن کوہ نور نیوز سید سجاد علی شاہ کو بھی خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا. کہ پاکستان ایک ایسی مثبت ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس سے پیس کا پیغام جائے گا، اور یہاں پوری بزنس کمیونٹی اور ہمارے شو بیس کے لوگ موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی خدمات کے اوپر سراہا جانا چاہیے، اور جس کی یہاں آج ایک مثال ہے. یہاں لوگوں کو ایوارڈز دیے گئے. بیسکلی ایوارڈز دینا یا اس کو ملنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ کسی کو سراہتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. بنو میں جانی خیل قبیلے کی جانب سے گرینڈ جرگہ اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فدا محمد خان کی رپورٹ میں. جانی خیل میں ہونے والے گرینڈ جرگے میں پورے جانی خیل قبیلے کے مشران، علماء اور نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. جرگے سے اپنے اپنے خطابات میں مقررین ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت پر شدید تنقید کی. مقررین کا کہنا تھا کہ جانی خیل قبیلے کے 37 علماء، مشران اور نوجوانوں پر کاٹی گئی FIR کے خاتمے کا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جس کے ذمہ دار صوبائی وزیر ملک شاہ محمد تھے، مگر وہ ابھی تک ختم نہیں کی گئی. جرگے نے علاؤدین جانی خیل پر پولیس تشدد کی بھی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ مذکورہ انسپکٹر کو فوراً معطل کیا جائے. جرگے کے بعد ایک پرامن احتجاج بھی ہوا جس میں قوم کے تمام افراد نے شرکت کی. جرگے اور احتجاج کے بعد ڈاکٹر نور محمد نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، حکومت کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم نے FIR کے بارے میں یعنی قوم کو بلایا، کثیر تعداد میں لوگ آئے تھے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ FIR پر ہم آگے یعنی قدم اٹھائیں گے. ہم نے 18 رکنی کمیٹی بنائی، اور وہ 18 رکنی کمیٹی انشاءاللہ ادھر جس کی طرف سے ہم پر FIR کاٹے گئے ہیں اس کے ساتھ ہم بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا ہم انشاءاللہ ادھر حکومت کے ساتھ بھی بات کریں گے، صوبائی حکومت کے ساتھ بھی بات کریں گے. اگر 28 تاریخ تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے، دھرنا بھی کریں گے، اور پوری قوم جانی خیل قوم پولیو کا بائیکاٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ 28 تاریخ سے پہلے ہمارے FIR پر غور کرے، ہمارا مسئلہ حل کرے احسن طریقے سے. اگر یہ احسن طریقے سے ہمارا FIR ختم نہیں ہو گیا تو ہم انشاءاللہ ادھر. پاکستان کا پہلا سائیکلسٹ عامر شہزاد افغانستان کا سفر مکمل کرنے کے بعد کھوٹکی پہنچ گیا. چھنگ شہر کے رہائشی عامر شہزاد کا استقبال کھوٹکی کے بائیکر عبداللطیف مہر نے کیا. اس موقع پر عامر شہزاد کا کہنا تھا کہ میرے سفر کا مقصد صرف محبت پھیلانا ہے، اس لیے سائیکل پر افغانستان گیا. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے لوگ مہمان نواز ہیں، کھوٹکی کے شہریوں سے بہت پیار ملا. ملتان سپورٹس گراؤنڈ میں SPU اور ملتان پروفیشنل کرکٹ کلب کے درمیان کرکٹ میچ کھیلا گیا. DIGSPU آغا محمد یوسف بھی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے. SPU ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ جیت لیا. سیکیورٹی کانسٹیبل محمد عرفان کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا. DIGSPU آغا محمد یوسف نے کرکٹ میچ میں خود بھی بیٹنگ کی اور اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا. اس موقع پر DIG کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی وجہ سے جوان ذہنی اور جسمانی طور پر توانا رہتے ہیں، لہٰذا جوانوں کو چاہیے کہ وہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیوں پر بھی توجہ دیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. مہنگائی کی حالیہ لہر نے سبزیوں اور اشیاء خورونوش کو عوام کی پہنچ سے دور کر دیا ہے. حکومت کی طرف سے نئی پرائس لسٹیں تو جاری کر دی گئی ہیں، لیکن ان پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں عمل درآمد کروانے میں بالکل ناکام ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں محمد شہزاد. حالیہ مہنگائی کی لہر نے عوام کا برا حال کر دیا ہے. کھیت سے پلیٹ تک کا سفر مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. حکومت وقت کی طرف سے نئی پرائس لسٹیں تو جاری کر دی گئی ہیں، لیکن حکومتی ادارے ان پر عمل درآمد کروانے میں بالکل ناکام نظر آ رہے ہیں. 50% دکاندار حکومتی نرخوں پر اشیاء خوردونوش فروخت کرنے پر تیار ہی نہیں ہے. حکومتی لسٹوں کے اوپر 40 سے 50 روپے اوور چارجنگ معمول بن گیا ہے. نجائز منافع خوروں کی طرف سے
की जाने वाली लूट मार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि नजायज मुनाफाखोरी के सदेबाब के लिए कायम प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस पर काबू पाने में कतई तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। में दिवाली मिलन और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा इंसानी हकूक़ के अहदेदारान समेत दीगर अफराद ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अदील अहमद की इस रिपोर्ट में। हिंदू बरादरी से इजहारी यकजहती के लिए लाहौर के कास्मोपोलिटन क्लब जनाब बाग में फलाई तंजीम समाज सेवा फाउंडेशन, पीस एंड जस्टिस, न्यूट्रिक और अल्लाह वाले ट्रस्ट के बाहमी इश्तराक से दिवाली मिलन और गुरु नानक देव के 553वें जन्मदिन की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में महकमा अक़लीती अमूर और इंसानी हकूक़ के अहदेदारान, मुख्तलिफ मज़ाहिब से मुंसलिक मजहबी शख्सियात और फलाई तंजीमों के नुमाइंदगान के अलावा नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। समाज सेवा फाउंडेशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस अनीका किरण ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा है। डिप्टी डायरेक्टर इंसानी हकूक़ मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौर में मुस्लिम, मसीही, हिंदू और सिख सब मिलकर बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मना रहे हैं और दिवाली की जो खुशियाँ हैं जो हमारी हिंदू कम्युनिटी की हैं, तो हम सब मिलकर इन खुशियों को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी एक तकरीब है कि जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान, और मैं समझता हूँ कि नौजवानों में इस स्पिरिट का बेदार होना ये बहुत बड़ा इनकलाब है और यकीनन हम ये अब कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान बनाएंगे, जहाँ पर रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। और बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के हकूक़ का दिफा भी करें, ख्याल भी रखें। के मुंसलिक नौजवानों का ऐसी तकरीब में शामिल होना बिला शोबा इंटरफेथ के कल्चर को फ़रोग़ देता है, जबकि महकमा इंसानी हकूक़ के प्लेटफार्म से हर मज़हब के पैरोकारों को अपने मजहबी दिन मनाने में भरपूर मामलत फराहम की जा रही है। इनका मज़ीद कहना था कि इस तरह की तकरीब से अमन और रवादारी के फ़रोग़ और एक पुरअमन मुआशरे की तश्कील यकीनी होगी। फलाई तंजीम सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर जैकब ने नौजवानों के भरपूर शमूलियत को सराहते हुए मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के एहतमाम पर समाज सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन लाला चमन लाल ने मुस्तकबिल में भी ऐसी तकरीबात के इनकाद का सिलसिला जारी रखने का अज़म किया है। एक्चुअली ये हमने दिवाली मिलन का इवेंट है और गुरु नानक देव जी की 553 जो है बर्थडे हम सेलिब्रेट करें, ये हमारी जॉइंट सेलिब्रेशन है। इसमें हमने तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों को इनवाइट किया सो दैट हम पीस बिल्डिंग को प्रमोट कर सकें। और हमारी कोशिश है कि जो एक एक्सट्रीमिज़म सोच हमारे मुआशरे में पाई जाती है, हम उसे किसी तरह चैलेंज कर सकें, उसे तोड़ सकें, और हम अमन को फ़रोग़ करने के लिए हम आगे आ रहे हैं और यूथ को हम आगे लेके आ रहे हैं। हम तमाम कम्युनिटीज़ की जो लोग हैं, यूथ है, हम उन्हें इंगेज कर रहे हैं। हम तमाम कम्युनिटीज़ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हम उन्हें इंगेज कर रहे हैं ताकि वो अमन का मैसेज यूथ तक पहुँचाए और यूथ के थ्रू हम कम्युनिटीज़ में पहुँचा सकें कि भाई तमाम रिलीजन्स की बेस जो है वो अमन है, पीस है, टॉलरेंस है, और हम इसी को ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं समाज सेवा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, ताकि समाज सेवा के प्लेटफॉर्म से पसमानदा कम्युनिटी के लोगों को कौमी मरकजी धारे में शामिल करने के लिए अपनी काविशें जारी रखी जा सकें। तकरीब के एहतमाम पर दिए जलाने के साथ साथ बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का केक भी काटा गया। कमिश्नर कप इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स क्रिकेट का फाइनल मैच बहावलपुर और रहीम यार खान की गर्ल्स क्रिकेट टीमों के माबैन खेला गया। बहावलपुर गर्ल्स क्रिकेट टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल करके मैच जीत लिया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। कमिश्नर कप इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स क्रिकेट बहावलपुर डिवीजन का फाइनल मैच बहावलपुर जिला रहीम यार खान जिला की गर्ल्स क्रिकेट टीमों के माबैन खेला गया। रहीम यार खान गर्ल्स क्रिकेट टीम 59 स्कोर बनाकर आउट होगी। बहावलपुर गर्ल्स क्रिकेट टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल करके कमिश्नर कप इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स क्रिकेट फाइनल मैच जीत लिया। फाइनल मैच में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद वड़ैच ने बासियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने बहावलपुर जिला की फातेह टीम को विनर ट्रॉफी और कैश प्राइज, जबकि रहीम यार खान जिला की गर्ल्स क्रिकेट टीम को रन अप ट्रॉफी और कैश प्राइज दिया। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ियाल खैर करते हुए कहा कि गर्ल्स खिलाड़ियों के टैलेंट को निखारने के लिए कमिश्नर कप इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स
کرکٹ حکومت پنجاب کا شاندار اقدام ہے، اس سے کھلاڑیوں کی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے کھیلوں کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ خواتین کھلاڑیوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیں۔ تقریبی تقسیم انعامات میں ڈویژن سپورٹ آفیسر مختصر حسن جوید، سپورٹ افسران ڈویژن کوچ عرفان عمر، گرلز کھلاڑیوں کی کوچ منیجر نے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔